Good afternoon. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. बोलो लास्ट क्लास में क्या हुआ था? State space tree. Chase. चेसबोर्ड। अच्छा, एल्गोरिथम की दिखाया था मैंने इन प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम। No, sir. No, No, sir. sir. No. वो सर क्वेश्चन सॉल्व कर बोले थे कि फिर से अच्छा ठीक है। इन क्वीन प्रॉब्लम। Problem statement is in queen problem is to place n queens on a n cross n chessboard such way that no two queens attack each other. In a row wise, column wise, and diagonal. The problem statement is in queen problem is to place in queens on a chessboard in cross and chessboard such a way that no two queens attack each other in a row wise, column wise, and diagonally. So what the implicit function and explicit function for this in queen problem is, so explicit function xi such that 1 less than equal to I less than function. So explicit function is that the numbers or elements in the problem set. So अगर n equal to 4, n equal to 4, that means chessboard क्या होगा 4 cos 4 chessboard and queen 1 queen 2 queen 3 and queen 4 4 queens, or we can build notations for each queen is x1 x2 x3 x4.
So that's why I have written here all the explicit functions are xi, all xi. One less than equal to I, less than equal to n. But the implicit function is the condition, implicit function, the condition of the problem. What is the condition? What is the condition for this problem? Bolo. Left, right, row, Not in the same row, not in the same column, not in the diagonal. diagonal. हाँ, इसका मतलब no two queens attack each other in row wise, column wise and diagonally. No two queens, no two queens attack in row wise, column and diagonal. This is the implicit function. An explicit function, all inside. So for 4 queens, queen 1, queen 2, queen 3, queen 4. So row wise, first queen को मैं first row में place करूंगा. First place means first row. First row में कितना possibilities है? 4 possibilities. 1, 2, 3, 4. For the second row, second queen. Third row, third queen, and fourth row, fourth queen. तो state space tree क्या होगा? x1 or queen 1. For the queen 1, there are 4 possibilities: column 1, column 2, column 3, and column 4. First row means first queen, x1. This is the first row. First row में तुम first कहाँ पे रखो? First column पे रखो. x1 equal to 1. x1 equal to 1. First queen, first row, first column. Then यहाँ पे queen 1 को रखने के बाद queen 2 कहाँ पे रख सकते हो? queen 2 को 3 possibilities, क्योंकि जिस ब्लॉक में और जिस कॉलम में मैं प्रीवियस क्वीन को प्लेस करूंगा उसी उसी कॉलम में और दूसरा कोई क्वीन को मैं नहीं रखूंगा. तो इनिशियली एक कंडीशन को मैं पहले से ही कंसीडर करके एक ब्रांच को मैं कम कर सकता हूँ. सो फॉर द सेकंड क्वीन 3 पॉसिबिलिटीज. ये क्या होगा? सेकंड क्वीन के लिए x2 इक्वल टू कहाँ पे रख सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हो क्वीन 2 को, क्वीन 2 x2 इक्वल टू 2. और नहीं जा पाओगे क्योंकि ना डायगोनली वायलेट हो रहा है. q1 कैन कट द 2, so we cannot go further. So back to this for queen 2. ये नहीं होगा तो बैक करके प्रीवियस पोजीशन में आ जाओ, क्वीन 1. तो नेक्स्ट x2 इक्वल टू x2 इक्वल टू 3, क्वीन 2, x2 इक्वल टू 3. देन x3 इक्वल टू यहाँ पे नहीं रख पाओगे, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कॉलम वाइज हो रहा है. x3 इक्वल टू 2. देन x3 इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा. x3 इक्वल टू 3 भी नहीं. Back to previous position. Back. So x2 equal to 4. So x2 equal to 4 means and for queen 3, x3 equal to queen 3 नहीं रख सकते, यहाँ पे रख सकते queen 3 को, queen 3 equal to 2 and queen 4
x4 इक्वल टू, यहाँ पे नहीं रख पाओगे, x4 इक्वल टू 1 नहीं होगा, x4 इक्वल टू 1 नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, x4 इक्वल टू यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि क्वीन टू तुम फोर्थ कॉलम पे ऑलरेडी प्लेस कर सकते हो। तो क्वीन 4 के लिए एक भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो बैक करके क्वीन 3 में आ जाओ। क्वीन 3 में यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज था लेकिन नहीं हुआ, तो क्वीन 3 को तुम यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाओ क्योंकि डायगोनली हो रहा है। x3 का टू, x3 का टू 3, back to previous position, and x2 equal to 4, x2 equal to 4 means queen 2 के लिए all possibilities तुम चेक कर चुके हो, x2 3 and 4, तो back to previous position, x2 equal to 1, x1 equal to 1, now x2 equal to 2, x2 equal to 2, x2 equal to 2 means queen 1 को तुम यहाँ replace करो, then x2 equal to sorry x1 equal to 2, x1 equal to, then x2 equal to, यहाँ पे नहीं रख पाओगे क्यों, कॉलम वाइज हो रहा है, x1 equal x2 equal to 1 नहीं होगा, प्रीवियस पोजीशन जाओ, x2 equal to 3 नहीं होगा, x2 equal to 3 मींस सेकंड और थर्ड कॉलम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डायगोनल हो रहा है, x2 equal to 4, x2 equal to 4, x2 equal to 4, सेकंड क्वीन को तुम प्लेस कर पाए, एंड फॉर द थर्ड क्वीन so x3 equal to क्वीन 1 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, x3 equal to 1, then for x4 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कॉलम वाइज हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ना x4 equal to 2 नहीं होगा क्योंकि ना डायगोनल हो रहा है, यहाँ पे x4 equal to 3, x2 equal to 3, एक सॉल्यूशन स्पेस, तो x1 equal to यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, तो x1 equal to 1, that means 1 comma 2, the first position 1 comma 2, then 2 comma 4, 3 comma 1, and 4 comma 3. So this is your solution space. This is solution space. Or you can write, x1 equal to 2, x2 equal to 4, x3 equal to 1, और x4 equal to 3. कोई भी लिख सकता है, कोई भी, no problem. This is one solution space. So x4 equal to 3, और एक हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे नहीं होगा कि कॉलम वाइज हो रहा है, तो बैक करो, बैक करके x3 equal to यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डायगोनल हो रहा है, x3 equal to 3 डायगोनल स्टॉप, देन पॉसिबिलिटीज x2 equal to 4 नहीं, बैक करो, बैक करके x2 equal to 4 के लिए हो गया, देन x1 equal to 3 like this. So x1 equal to then x1 equal to similar process तो फिर से कर सकते हैं. So this is a straight stress tree for the n-queen problem, n equal to 4 queen problem. So what is the algorithm for this problem?
algorithm for in-queen problem. So first, in queens, k comma n. What is the k and n? K is for number of queens. First k equal to 1, k equal to 1 means first queen, k equal to 2, second queen, k equal to 3, third queen, k equal to 4, fourth queen. And small n is total number of queens, that is 4. When k equal to n, then we can print the solution space. So in queens k comma n, so for first k is for stands for queens, and n is the total number of queens or length of the set. तो कोई एक फर्स्ट क्वीन के लिए क्वीन नंबर वन के लिए टोटल कितना पॉसिबिलिटीज 1 2, अगर n इक्वल टू 4 तो क्वीन वन के लिए टोटल कितना पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 4 टाइम्स तुम चेक करोगे. सो फॉर y इक्वल टू 1 to n. So here I stands for columns. I noted for column. I equal to 1 first column, I equal to 2 second column, I equal to 3 third column, and so on. The first I equal to 1 होगा, key equal to 1, key equal to 1 means first queen, I equal to 1 means first column, first queen second column, like this. So for I equal to 1 queen, then if places function यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वीन को क्वीन को ith कॉलम में प्लेस कर रहा हूँ. अगर प्लेस हुआ तो if place k comma I, kth number of queens ith column, ठीक है. So that's why for I equal to 1 to n. So if place k comma I, that means अगर प्लेस हो गया, suppose this is placed, तो xk equal to I. जैसे स्टेट स्ट्रेस में क्या हो रहा था, x1 equal to 1, k equal to 1 means first queen, ith column, I equal to 1 means x1 equal to 1. That's why x of k equal to I. Now print कब होगा, if k equal to n, then print x of 1 to n. इस पोजीशन को तुम प्रिंट कर सकते हो. अगर प्रिंट नहीं हुआ, if k equal to n नहीं है, not equal to n, then else पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट क्वीन को मैं प्लेस करूंगा. सो नेक्स्ट क्वीन को प्लेस करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, इन क्वीन को फंक्शन को मैं रिकॉल करूंगा. तो इन क्वीन ऑफ k plus 1 comma n. This is the algorithm for in queen problems. Now प्लेस कैसे कर रहे थे, प्लेस k comma k queen ith रो सॉरी ith कॉलम कैसे प्लेस हो रहा था, तुम डायगोनल चेक कर रहे थे एंड कॉलम वाइज चेक कर रहे थे. अगर कॉलम सेम कॉलम नहीं तुम पुट करोगे एंड डायगोनल भी नहीं होगा. सो प्लेस k comma I, प्लेस फंक्शन. सो प्लेस k comma I, प्लेस k comma I for three condition checking. So for g equal to 1 to k minus 1, for g equal to 1 to k minus 1, क्योंकि तुम अगर k equal to फोर्थ क्वीन के लिए चेक कर रहे तो
प्रीवियस 3 क्वीन के साथ तुम डायगोनली कॉलम एंड रो वाइज सॉरी डायगोनल कॉलम तुम चेक करो. So if x of j equal to I or absolute value of xj minus I equal to absolute value of j minus k. If this happen, then return false. Return else true. Return. Return true means तुम place कर सकते हो. This is for this is the algorithm for n queen problems. So in queen k comma n kth queen in total number of queens for I equal to 1 to n if place so please के अंदर क्या हो रहा है तुम previous k minus 1 queen के साथ तुम चेक कर रहे हो. This is for column checking and this is for diagonal checking diagonal check. अगर कॉलम सेटिस्फाई हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स प्लेस नहीं कर पाओगे. अगर डायगोनल हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स नहीं हो रहा. सर अगर ये स्लाइड को थोड़ा सर ऊपर कीजिए ना सर. कौन सा कॉलम हाँ सर ठीक है सर थोड़ा लिख लेते हैं. So one condition x of j equal to I. This condition for column and absolute value of x minus I equal to absolute value of j minus k. This condition is for diagonal checking. अगर कोई भी एक सब्शन हो रहा है तो इसका मतलब तुम प्लेस नहीं कर पाओगे. अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो रिटर्न ट्रू. फॉर j equal to 1 to k minus 1 क्योंकि ना तुम kth नंबर ऑफ क्वींस को अगर तुम प्लेस करना चाहते हो तो k minus 1 प्रीवियस जितना सारे क्वींस को तुम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हो उसके साथ तुम क्या करोगे चेक करोगे सबके साथ. दैट्स व्हाई j का 1 1. अच्छा नोट डाउन कर लो इसको लिख लो. हो गया. Sir, show that place part.
कौन सा प्लेस k comma I, Yes, sir. Yes, sir. That one. place k comma I, place k comma I for j equal to 1 to k minus 1 if xj minus xj equal to I. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 minus 2 1 minus 2 apps mod equal to 1. This is the value of absolute. Okay, sir. Okay, sir. हो गया चेक करके देखते हैं ये एल्गोरिथम के साथ कैसे मैप कर पाओगे स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ कर रहे थे और उसके साथ पूरा क्यों हो रहा है देखो so n queen 1,4 first n queen 1,4 1,4 means 4 मतलब क्या है total number of queens and 1 means first queen equal to 1 first queen in 1,4 for I equal to 1 to n तो कितना पॉसिबिलिटीज होता है फर्स्ट क्वीन के लिए 4 पॉसिबिलिटीज 4 होता है ना तो दैट इसीलिए I equal to 1 I equal to 1 means first column I equal to 1 means first column I equal to 2 means second column 3 means third column 4 means fourth column like this so I equal to 1 first queen को so n of 1,4 first queen को कहां पे प्लेस करना चाहते हो फर्स्ट कॉलम में so place 1,1 place 1,1 मतलब यहाँ पे place 1,1 तो जब तुम प्लेस के अंदर आओगे प्लेस 1,1 मतलब प्लेस 1,1 1 ठीक है तो फॉर j इक्वल टू 1 to k minus 1 तो फर्स्ट क्वीन को प्लेस कर रहे हो उसका प्रीवियस कोई क्वीन है नहीं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा j इक्वल टू 1 to k minus 1 काम नहीं करेगा तो दिस इज ट्रू ये फॉर लूप नहीं हो रहा है तो else return true तो क्या हो रहा है x k इक्वल टू क्या है 1 दिस इज 1 so x1 equal to I equal to 1 so x1 equal to 1 x1 equal to 1 if k equal to n then you can print क्योंकि फास्ट अभी तक फास्ट लेवल पे हो तो प्रिंट नहीं कर पाओगे तो एल्स पार्ट में होगा एल्स पार्ट में क्या होगा n queen 1 k plus 1 comma n that means n queen 2 comma 4 सेकंड क्वीन को तुम प्लेस करोगे n queen 2 comma 4 जब n queen 2 comma 4 हो रहा है तो प्रीवियस यहां से फिर से स्टार्ट होगा ठीक है n queen 2 comma 4 उसके लिए तुम क्या चेक करो I equal to 1 to n 4 टाइम्स देखो I equal to 1 यहां पे कर पाओगे कि नहीं तो कॉलम को तुम रिड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ पे जब तुम आओगे तो क्या होगा 2,1 प्लेस 2,1 तो प्लेस 2,1 k का वैल्यू 2 एंड I का वैल्यू 1 जे कितने बार रन होगा जे 1 टाइम्स रन होगा क्योंकि ना क्यू क्वीन 2 को तुम प्लेस करना चाहते हो तो उसके पहले सिर्फ एक ही क्वीन को तुम प्लेस कर चुके हो क्वीन 1 तो फॉर कितना चलेगा प्लेस के अंदर एक सिर्फ एक बार मतलब एक ही क्वीन के साथ तुम कंपेयर करोगे ठीक j इक्वल टू 1 सो x ऑफ 1 j इक्वल टू 1 मींस क्या होगा x ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 1 तो 1 इक्वल टू I का वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 1 दैट मींस कॉलम यहां पे तुम क्वीन 2 को प्लेस करना चाहते थे तो ये कॉलम आई सेटिस्फाई हो रहा है तो रिटर्न फॉल्स तो तुम नहीं कर पाओगे यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो क्या होगा रिटर्न फॉल्स फिर से आ जाओ यहाँ पे I इक्वल टू 1 के लिए तुम चेक किए थे I इक्वल 2 के लिए चेक करो I इक्वल 2 के लिए चेक करो I इक्वल टू 2 मींस प्लेस 2,2 हियर प्लेस 2,2 तो प्लेस 2,2 जब आओगे j इक्वल टू 1 ठीक है ये नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है लेकिन यहाँ पे जब आओगे x of j means 1 minus 2 is equal to 1 absolute value is 1 for this one j minus k j means क्या 1 and k is 2 1 so 1 equal to 1 मतलब डायगोनल सैटिस्फाई हो रहा है मतलब क्वीन 2 को यहाँ पे तुम प्लेस नहीं कर पाओगे
x2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3 के लिए तुम चेक कर सकते हो, मतलब i इक्वल टू 3 के लिए। सो i इक्वल टू 3 मींस यहाँ पे तो होगा, यहाँ पे जब होगा देखो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होगा, j इक्वल टू 1 के लिए दोनों दोनों एक भी नहीं होगा तो रिटर्न ट्रू, तुम प्लेस कर सकते हो। So, जब तुम प्लेस कर रहे हो यहाँ पे x2 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 3, तब जाकर तुम यहाँ पे लिख सकते हो x2 इक्वल टू 3, तो वही हो रहा है स्टेट स्पेस ट्री। So this is the algorithm for in-queen problem. In-queen problem, अच्छा एल्गोरिथम समझ में आया? बोलो। ये सर ये x कंटेन 1 2 3 4। हाँ हाँ सर समझ आएगा। तो हम लोग क्या क्या इनक्वीन प्रॉब्लम क्या क्या कंप्लीट किया, इनक्वीन प्रॉब्लम्स क्या क्या देखना पड़ेगा तुम्हें, इनक्वीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, implicit function, explicit function. And state space tree. Algorithm. सर वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन एक बार दिखाइए। अच्छा, implicit function और explicit function. Implicit explicit function मतलब क्या, explicit function मतलब तो प्रॉब्लम सेट के अंदर क्या क्या नंबर्स और एलिमेंट्स है, ठीक है, एक्सप्लिसिट। अच्छा, तो इनक्वीन प्रॉब्लम के लिए सेट के अंदर क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन प्रॉब्लम, इनक्वीन प्रॉब्लम के लिए क्वीन 1, क्वीन 2, क्वीन n, actually this is nothing but some numbers, means 1 2 3 dot n, और तो क्या लिखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ दिस नंबर, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन मींस ऑल क्वींस xi 1 less than equal to I less than equal to n, so this is an implicit function, explicit function, ठीक है, समझ में आया? यस सर। और implicit फंक्शन मींस इस प्रॉब्लम के अंदर कंडीशन क्या है, कौन सा कंडीशन को तुम्हें मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करके या कंडीशन को चेक करने के बाद तुम्हें सॉल्यूशंस पे ढूंढना है, कौन सा कंडीशन, नो टू क्वींस अटैक ईच अदर इन रो वाइज कॉलम वाइज एंड डायगोनली, तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन, दैट मींस कंडीशन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So what is the condition for this inquiry problem? The condition is no two queens attack each other row wise, column wise and diagonal.
ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑल पाथ्स इन अ ग्राफ, मैं क्या ये हो गया ऑल पाथ्स इन अ ग्राफ? क्या हुआ? बोलो, ऑल पाथ्स इन अ ग्राफ में क्लास में कर दिया? ऑल पाथ्स इन ग्राफ, ये सर आप कर रहे तो थे। तो ऑल पाथ्स इन अ ग्राफ, सर ये तो आपने करा दिया है सर। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऑल पाथ्स इन अ ग्राफ हो गया ना? यस सर। So in this problem, what are the explicit function and implicit function? बोलो, explicit function क्या होगा और implicit function क्या होगा? एक्सप्लिसिट तो होगा 1 to n। 1 to n। तुम ऐसे भी लिख सकते हो vi 1 less than equal to I less than equal to n। That means all vertices of the graph, isn't it? All vertices 1 to n। तो मैं ऐसे एक एग्जांपल लिया था 1 is 2, so these are the vertices 3 4 5 ऐसे लिया था ये, this is the source node and this is the graph, under graph, and 1 2 3 4 5 6 6 vertices are there. So we can write also explicit function is vi I such that I 1 less than equal to I less than equal to n. v1 v2 v3 v4 v5 v6, and implicit function which conditions in these problems if have used. In a single path, no two vertices can be repeated. हाँ लिख सकते एक्चुअली, वो कंडीशन नहीं है, तुम बैक ट्रैक करने के लिए उस वर्टेक्स को तुम चूज नहीं करोगे, डायरेक्टली कोई कंडीशन यहाँ पे यूज नहीं है, देयर इज नो इम्प्लिसिट फंक्शन, यू हैव टू फाइंड ऑल द पाथ्स। Okay, sir. There's no all subsets, find the all subsets. Is there any implicit function? No implicit function in this find all subsets problem. But find the sum of subset. The sum of subsets, there is an implicit function. The sum of subset. Sum of subset implicit functions are explicit is the set, given set, given set. Yes. Small a side, not less than equal to r, less than equal to. This set is the explicit function. But implicit function is sum of subset is equal to n. W of weight of the SI, and SI belongs to subset of capital S. और ऐसे तुम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, the subset with sum is ये भी लिख सकते हैं, sum of subset है फंक्शन है। तो बैक ट्रैकिंग all subsets
सर यस सर n क्वीन का इम्प्लिसिट में नो टू क्वींस अटैक ईच अदर रो वाइज कॉलम वाइज एंड डायगोनली। हाँ हेलो हाँ 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 यस। सर हाउ नो टू क्वींस कैसे, मतलब वो तो अटैक करते हैं ना, इसलिए हम नहीं रखते रो में और ये में। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, नो टू क्वींस, दो क्वींस रो वाइज डायगोनल या कॉलम वाइज अटैक नहीं होगा, मतलब तुम प्लेस नहीं कर पाओगे। हाँ और दे कैनॉट लाई इन सेम रो वाइज कॉलम वाइज एंड डायगोनल। ठीक है। ऑल सबसेट्स, सम ऑफ सबसेट all paths in graph all paths in graph and in queen problem। अभी चार बैकट्रैकिंग प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और बाकी है सुडोकू एंड पार्टीशन। लास्ट नेक्स्ट क्लासेस इस प्रॉब्लम बैकट्रैकिंग प्रॉब्लम पढ़ने के लिए स्कीना स्टीवन एस स्कीना। सर आप किताब, नोट्स भेजे नहीं है सर अभी तक। अच्छा नोट्स नहीं भेजा ना मैं, नो सर, मैं अपना मेल आईडी दे दिया था आपको। तो मुझे ये मेरा भेज चुके हो? ये सर व्हाट्सएप में भेज चुका हूँ। अच्छा ठीक है। होगा ना? क्लास क्लास हो जाने के बाद मैं आज ही भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी इसके बाद तुम लोगों का क्लास है क्या? जी सर, एक सर पीपीटी 4 क्लास बजे है सर। सर। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मैं बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी, वर्क का 3 पीडीएफ और स्टीवन एस स्किनर बुक का पीडीएफ, ठीक है। 4 मैं नोट्स भेज रहा हूँ, फॉलो करना, ठीक है। जी सर। और कोरमैन बुक तुम लोग डाउनलोड किए कोरमैन? ये सर कुछ बच्चों के पास, मेरे पास तो है सर। अच्छा, बैक ट्रैकिंग छोड़ के बाकी फ्लो नेटवर्क, कोरमैन बुक फॉलो करना, और ग्रीडी, कोरमैन, बैक ट्रैकिंग के लिए स्किना। अच्छा, तो अभी तक एडी ओके सर। बहुत टफ लग रहा है और ठीक ठाक लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है सर। नो सर, नॉट टफ। क्या आशुतोष मिश्रा टफ लग रहा है? नो सर, नॉट टफ। अच्छा ठीक है। जहाँ पे डाउट या प्रॉब्लम होगा समझने के लिए, और डाउट क्लियर करने के लिए तुरंत मुझे पूछना। यस समझ सर, में यस। तो आ जाता है सर, लेकिन वही ना सर, क्वेश्चन जो आता है। लेकिन एडी 2 का क्वेश्चन थोड़ा बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप का पढ़ा ठीक है रहा हूँ सर। क्लास में। हाँ वैसे ही क्वेश्चन आता है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था ना कुछ दिन पहले, मिड सेम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, तो देखिए क्लास में जो हुआ था वही क्वेश्चन आया। सर हम लोग का मिड सेम कब होगा यस सर? सर। ये सर कब मिड होगा? सेम का आएगा शायद, अभी बातचीत चल रहा है मिड सेम के लिए, तो होगा कुछ दिन। और सर कैसे होगा सर, एमसीक्यू या नॉर्मल लिखने वाला? अभी पता नहीं क्या होगा, ठीक है, पता चल जाएगा। सर आप क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसे हो सकता है, मोस्ट पॉसिबिलिटीज? ऑनलाइन जैसे हुआ था।
अच्छा जैसे हुआ था ओके एमसीक्यू। सर। हाँ, अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है सर। एकदम लिखा था एनक्वीन प्रॉब्लम के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करो। ओके सर। अच्छा ठीक है, अभी लीव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.